Good afternoon, one and all present here. Today we are here in the denouement of our series of international webinar on the relevance of Mahatma Gandhi in the 21st century. So, conducted by Department of History, Kirodimal College, and Internal Quality Assessment Cell, Kirodimal College. In this series, we already had 4 lectures from renowned personalities across the world. And last but not the least, today we have a open discussion relate on various aspects related to Mahatma Gandhi, and also anyone want to discuss from the previous lectures, they can discuss here. It will be an open discussion. Everyone can present their views and discuss any topic related to Mahatma Gandhi, but by following due procedure. And knowing the importance of time, the discussion will be strictly for 45 minutes, and this will be followed by a tribute to Mahatma Gandhi by some students. Now I would like to invite Ajit sir to address the audience. Ajit sir, can you hear me? Ajit sir, can you hear me? I think there are some technical issue. I would like to invite Altaf sir to address the audience. Am I audible? Yes, Jatin. Yes, you are. Yes. Yes, thank you. Uh, First of all, thank you and welcome everyone for this session. And this session is, of course, is a open for open discussion where you can share your ideas, your views on Gandhi and Gandhi's philosophy and his life. So uh, I think we should open the discussion first, and then we will try to wind up it in the last. So I think this is a good platform where students, teachers are there. So everyone is, free to share his opinion, his views, uh, whether in the favor of Gandhi or is there any critical view on Gandhi, any aspects, either non-violence or Satyagraha or women's issues or any kind of ideas and philosophy of Gandhi. So I think, Jatin, we should open the floor for everyone, and then we'll try to wind up in the last. Thank you, sir. Now, as I already told, the discussion will be open to all, and everyone can come and present their views, but by following due procedure. And now I would like to invite Kostub. He will tell you the procedure of discussion, and everyone is requested to follow the due procedure to make this discussion fruitful. Thank you. Kostub. Hello. Thank you so much, Jatin. Good morning, good afternoon, everyone. I'm so sorry. So, without further ado, let's get straight to the rules of the discussion. The discussion will be open to teachers and students alike. The floors will be off for 45 minutes. And since we are short on time, we'd like to keep you to present your views and thoughts as briefly as possible. And that's it. There are not much rules. And if anyone wants to voice their opinions or thoughts, you can type your name in the chat box, and we'll call out your name. If your name is not called out, please. Sorry, forgive me. If your name is not called out, you are free to express your thoughts and opinions in the chat box. We like to read them aloud too. So, without further ado, if there are not any other questions, can we just start?
please start typing your names in the chat box. Whoever would like to present their thoughts. I'm not seeing any names. You can express your thoughts about anything. The lecture series that took place recently, or it can be anything about Gandhi in general. Whatever you'd like to speak or whatever you'd like to discuss. It's an open discussion, please. You all are welcome. Would like to start? Jishnu, thank you so much. Jishnu, may I please request you to open your mic and camera, if that's fine by you? Yeah, my camera is already on. Okay. Thank you so much. Welcome, Jishnu. Yeah, thank you. So yeah, welcome everyone. And though this webinar series was really interesting, while initially thinking about how the seminar would go and how the speakers would turn out, even though we are very much optimistic about having a very fruitful discussion, and that pretty well happened and turned out to be. So while attending the talks and discussion through these days, one point that I realized was that from being a student and from seeing Gandhi from my point of view as in through the lens of 21st century, I have been critical about Gandhi on a number of topics, be how feminist Gandhi is, or being how much supportive Gandhi was towards the lower caste. And a number of our views forms also form through various uh, criticisms that we read about Gandhi. And also I realized in due course that while in the present scenario the socio-political uh, back, situation of our country is being somehow modified or somehow being directed to such a form that even though I guess there are some shortcomings of Gandhi, while we must obviously surely address those shortcomings, I guess the criticisms sometime should be curtailed to certain amount. For example, while we very easily criticize Gandhi on various fields, if that criticism somehow or somewhere falls into a wider public conscience, and there creates a disrespect, I'd say, or be it little skeptical about Gandhi and his things and his ideas and philosophy, then I guess the wider goal that we would we wanted to achieve might not be reached. I'd like to just give a small anecdote why I'm saying that there should be a little constraints or a little second thought while criticizing Gandhi. We all know that in India or worldwide, the left movement or the communist movement have taken various forms and yeah, but then it also has got its own shortcomings, and obviously there are scholars who are not essentially from the right wing side or from the what do you say, the right scholars, but then liberals who have also criticized the left movement. But talking to few of those liberal writers in the last months or in the last period, what I realized was they themselves curtailed their criticism, and they even stopped publication of several books and articles which published the criticisms of the left or the socialist or communist movement, because even though there are some shortcomings of that movement, but then the larger perspective that a left movement brings to us should not be forgotten in the
in the due course of criticizing it. In the same manner, while Gandhi has a lot of shortcomings, and while it was not we are not supposed to call him Mahatma or expect something very huge from Gandhi. He was a man of his own time, in his own space. So while criticizing Gandhi, we must not forget that if the criticism of Gandhi overburdens us, then I guess the bigger dream that we try to achieve in this present socio-political arena might not be reached, or somewhere it might be misdirected. Thank you. Thank you so much, Jishnu. That was such a nice speech, and that was quite thought-provoking too, I think. I mean, in a time where we live, where we question Gandhi so much, where we question everyone so much, and we question their ideas so much, I think that was a really thought-provoking speech. And any questions, guys? If you have any doubts, any queries, any feedbacks, any factual errors that have to be corrected in anyone's speech, you can do so at the end of his speech. And last thing I would like to remind you is that this is a bilingual discussion. ये डिस्कशन दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में अंग्रेजी में हो सकता है. तो आपको यदि अंग्रेजी में बोलने में कोई दिक्कत हो या आपको हिंदी में बोलने में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, तो देन डोंट बी रिलक्टेंट, आप आइए और बोल के जाइए. तो मे आई नो हुज नेक्स्ट इफ एनीवन. ओके, चर्चित, मिस्टर चर्चित गंगवार, प्लीज आइए चर्चित भैया. आज के सदन को मेरा प्रणाम. जैसा कि हम जानते हैं कि विगत दिनों में हमने गांधी जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों को जाना, और जिस प्रकार से हमारे इतिहास विभाग ने हम सभी विद्यार्थियों को ये अवसर दिया कि हम अपने विचारों को इस मंच पे रख सके जहां पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर्स ने हम लोगों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है, तो मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. और सर्वप्रथम मैं जब बात करता हूँ गांधी की वर्तमान 21वीं सदी में प्रासंगिकता पर, तो मुझे लगता है कि गांधी के विचारों को हमें आज के समय के साथ जोड़कर या फिर उसकी तुलनात्मक अध्ययन से ज्यादा समझना चाहिए. तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और 21वीं सदी को परिभाषित करते हैं तो बहुत सारे शब्द इसके साथ खुद ही जुड़ जाते हैं. बात करते हैं वैश्वीकरण की, मुक्त बाजार की, निजीकरण की या उदारीकरण की. लेकिन इन सब के साथ ही हम बात करते हैं तो कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें हम अछूता नहीं कह सकते, और उनमें शामिल है अहिंसा, उग्रवाद, असमानता इत्यादि. लेकिन हमको, और अगर हमें इन विषयों पे चिंतन करना है तो हमें गांधी के मर्म को समझना होगा कि गांधी का विचार क्या था, गांधी का इस पर दृष्टिकोण क्या था, आज के हो क्या रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है. मैं उस पर थोड़ा अपना विचार रखना चाहता हूं कि गांधी को बेनकाब करने के लिए कुछ स्थिर मान्यताएं और पूर्व निर्धारित मूल्यों के आधार पर उन पे चाबुक मारे जाते हैं इतिहास, और इससे सब इतिहास की समझ को उलझाया जा सकता है. ऐसे प्रचार किए जाते हैं कि गांधी ये करते थे, वो करते थे. मैं आपके साथ दावे से कह सकता हूं कि इस प्रकार के जो भी भ्रम प्रचारित किए जाते हैं वो प्रचार मूलक तो हो सकते हैं, परंतु कहीं भी विमर्श का कारण नहीं बन सकते. आपसे बात करना चाहता हूं कि जब व्यक्ति को आप उसके समय के इतिहास से काट कर देखते हैं और जब उसके द्वारा छोड़े गए अधूरे कामों को और उनकी विफलता को राजनीतिक आने वाली राजनीतिक पार्टियों की जड़ता के थोपने की जगह आप उनको गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आपको समझना होगा कि इतिहास की गति को सिर्फ एक व्यक्ति की गति से मापने की भूल नहीं करनी चाहिए. व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु को इतिहास का अंत मानना एक बचकानी हरकत है. जब आप गांधी के ऊपर विमर्श कर ही रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आलोचना और निंदा में अर्थ क्या है. हमको समझना होगा कि आलोचना और निंदा आज के समय में क्या है, तब के समय और आज के समय, तभी हम इस प्रासंगिकता को समझ पाएंगे. सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा आलोचना की. आप जब गांधी को पढ़े हैं, हम जब कभी गांधी को पढ़े, हमें पहले ये निर्धारित करना चाहिए हम निंदा के लिए आलोचना को पढ़ रहे हैं, तो गांधी को पढ़ रहे हैं या आलोचना के लिए. अगर हम निंदा के लिए गांधी को पढ़ रहे हैं तो मैं सीधे कहता हूं कि भाई आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, फिर तो किसी न चिंतन की आवश्यकता है ना किसी विमर्श की आवश्यकता है. फिर आप जो सोचते हैं वही सत्य है और वही गांधी का चरित्र है. लेकिन यदि आप जब गांधी के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा उस कालक्रम को, उस परिवेश को, उस उम्र को जो गांधी ने जी है. और आपको यह भी समझना होगा कि जब गांधी जो थे, गांधी के समय भी उनके आलोचक रहे थे, और ऐसे आलोचक जिनमें शुमार है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, B.R. अम्बेडकर जी. लेकिन आज हमने आलोचना को किस रूप में परिभाषित कर रखा है, हमें उस अतीत को आज के वर्तमान के चश्मे को उतार के देखना होगा. उन गांधी और उनके आलोचक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह नहीं थे कि एक सिरा यहां पे एक सिरा वहां पे.
वो लोग एक ही कार्यक्रम में जुड़कर एक ही समय में रह के राष्ट्र निर्माण में अपने विचारों की आहुति से स्वाधीनता के संग्राम में शामिल हुए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आलोचना को हम किस रूप में ले रहे हैं? हमें आलोचना पसंद नहीं, हमें रिजेक्शन पसंद नहीं, हमें ना सुनने की आदत नहीं, हमें विरोध स्वीकार नहीं। और इनमें से किसी भी प्रकार की चीज होने पर सीधी बात है, शुरुआत होती है अभद्र टिप्पणियों से, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं माँ बहनों की गालियों से। टीवी चैनलों पर बैठ के हम खुलेआम हमारे विरोध में हम लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम शुरू कर देते। और अगर आप खुलेआम विरोध करना शुरू कर दें, फिर तो आपके ऊपर कई प्रकार के शासकीय आपके ऊपर शोषण शुरू हो जाएगा। और यहाँ तो विरोध का आज के जमाने में क्या हो गया है, या तो भाई आप समाज से जाएंगे या फिर आप जान से जाएंगे। तो ऐसे विकट परिदृश्य में गांधी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां समझना होगा कि गांधी को हम महात्मा क्यों कहते हैं, वो महात्मा को कैसे प्राप्त हुए, आलोचना को उन्होंने किस प्रकार से स्वीकार किया। गांधी के और भी हिस्सों पर बात करने के लिए मैं अगले जो पिछले दिनों की चर्चाओं में कई विषय उठे थे, जिनमें से एक प्रमुख विषय था जाति और जाति की संरचना और गांधी का उसमें योगदान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी की एक प्रार्थना सभा हुआ करती थी, और प्रार्थना सभा की जो पहला जो मंत्र था वो था ईशावास्यमिदं सर्वम यत् जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा तस्य सुधनम। यानी कि जो भी इस जगत में, इस नगण्य में है, उस सभी में ईश्वर का वास है। भोग त्याग करने, और जो इन सबका जो भोग है वो त्याग के लिए करो और किसी के धन का लालच मत करो। गांधी का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि आप इस संसार में अगर आप जीवित हैं तो परहित के लिए जिए, मानव मात्र के लिए जिए, अपने स्वार्थ के लिए न जिए। गांधी के आदर्श, गांधी के जीवन का मर्म ये था। गांधी का एक सबसे जो पसंदीदा जो उनका जो था मंत्र, वो भगत नरसिंह मेहता का था, उसे भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आड़े रहे। यानी कि जो यहाँ पे वो परिभाषित करते हैं कि वैष्णव जन कौन है, यानी हरि का जन कौन है। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि जन्म के साथ ही हमारी जाति निर्धारित हो जाती है, हमारा सामाजिक स्तर निर्धारित हो जाता है, गांधी कहते हैं कि वैष्णव जन तो वह है जो दूसरे के लिए परोपकार की बात करे, दूसरे के लिए दीनता की बात करे, उसके प्रति दया रखे, करुणा रखे, मन वचन और कर्म से उसे पीड़ा ना पहुंचाए, वो है वैष्णव। वैष्णव वो है जो लिंग, जाति, संप्रदाय, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना करे। गांधी का विचार संकुचित नहीं था। गांधी को कई बार आलोचना की दृष्टि से देखते हैं कि अंग्रेजी का जो अखबार वो जो पत्रिका निकलती थी हरिजन, उसमें अंबेडकर जी एक बार आलोचना के स्वरूप कहते हैं कि आप उसमें जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, और वहीं दूसरी ओर जब दीनबंधु पत्रिका है उसमें आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद के समर्थक के रूप में, जो कि गुजराती में निकलती है। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी की डिमांड क्या है, गांधी का हरिजन का मतलब क्या था। जब सहस्त्रों वर्षों से जब कोई भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज में विद्यमान है, और वहां पे एक स्टेटस बना दिया गया है कि हम पवित्रता को और पवित्रता को ब्राह्मण से जोड़ेंगे और निकृष्टता को शूद्र से जोड़ेंगे, ऐसे समय में उन परिभाषाओं को, उन शब्दों को बदलने के लिए गांधी ने हरिजन का प्रयोग किया। हरिजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां पे अछूत जिस अछूत की बात कही गई थी, गांधी उस अछूत के खिलाफ थे, उस अछूत शब्द के प्रयोग के खिलाफ थे। गांधी ने क्या काम किया था, वो गांधी उस संरचना के समर्थक इसलिए थे ताकि किसी को विशेषाधिकार नहीं रहे। अगर एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आपके 5 दोस्त हैं, आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, और जब आप किसी एक को चुन लेते हैं, यानी किसी एक को विशेषाधिकार दे देते हैं, तो आप उसका विशेषाधिकार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे सारे दोस्त बेस्ट है, तो यानी कि जो बेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ का कॉन्सेप्ट है, आप उसे ही नकार देते हैं, उसकी प्रासंगिकता खत्म कर देते हैं। यानी कि एक सोशल स्ट्रक्चर को ही आपने, उसके सोशल स्ट्रक्चर के भीतर जो भी जातियों की विशेषाधिकार थे, गांधी ने उनको मिटाने का काम किया। और गांधी के लिए एक प्रसंग है कि जब अंबेडकर साहब गांधी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि आप भंगी तो नहीं है, फिर भंगियों की बात क्यों करते हैं, तो गांधी जी का इस पर रुख होता है। मैं उस कथन को पूरा पढ़ता हूं आपके सामने। इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर भंगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से भंगी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भंगी में हो। आप समझ रहे हैं इस संदर्भ को हम वर्तमान में किस प्रकार से जोड़ के देखें। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब आप नागरिक अधिकार की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप दलित हैं तो दलित की बात कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं कि जब मुसलमान की बात कर रहे हैं।
आपको समझना पड़ेगा उस संदर्भों के लिए। गांधी उस लोक की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस लोक में लोक की एकता की बात करते हैं। हम दूसरे के अधिकार के लिए कितने खड़े हैं। गांधी के मर्म में, गांधी के उस आदर्श में यही था। वो दूसरों के लिए, लोक के लिए खड़े थे। उन्हें के लिए सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण थे, ना कि जातिगत विशेषता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैं एक प्रश्न जो कल उठ रहा था, मैं उस पे कि एक प्रश्न उठाया गया था कि जो स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई थी, उसके बाद गांधी जी का कुछ बयान आता है। मैं पहले उस टिप्पणी को पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको आज के संदर्भों में प्रस्तुत करना चाहूंगा। गांधी जी की टिप्पणी होती है, राशिद मेरा भाई है और मैं बार बार यही कहूंगा, हत्या के लिए मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। दोषी वह लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। उसकी कोई गलती नहीं है और उसे दोषी ठहराकर किसी का भला नहीं होगा। अब इस मत को, इस विचार को आपने सुना, अब इसे आप वर्तमान संदर्भों में सोचिए। गांधी को भूल जाइए एक समय के लिए। हम कुछ रिसेंट घटनाओं पे जाते हैं। हम झारखंड में तबरेज अंसारी की हत्या पे जानते हैं, हम जाते हैं अखलाक पे, हम जाते हैं जुनैद की हत्या पे, हम पहलू खान की हत्या पे, हम जाते हैं कमलेश तिवारी की हत्या पे, हम जाते हैं अंकित शर्मा की हत्या पे, हम जानते हैं चंदन गुप्ता की हत्या पर। एक मिनट, सॉरी एक्सक्यूज मी चर्चित भैया, ये वाला मुझे बस मतलब थोड़ा जल्दी ये वाला मुझे कंटिन्यू थोड़ा जल्दी ये वाला मुझे कंटिन्यू करके बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। थोड़ा जल्दी। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ, जब हमको समझना होगा कि जब गांधी तो इस प्रकार की जो हत्याएं हो रही हैं, हम अपने समाज में इस प्रकार का वैचारिक विष घोल रहे हैं कि हम समाज में लोगों को ये असुरक्षा कह देना है कि हमारे साथ जो खड़ा है हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित उससे ही है। हम टीवी पे बैठ के दूसरों की फिरौतियां दे देते हैं कि उसका गला उतार लाओ, वो उतार लाओ। हत्यारा कोई एक होता है। आप सोच के देखिए कि आपका कोई व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा है, उसके मन में इतना वैचारिक विष भरा है किसी दूसरे संप्रदाय या जाति के खिलाफ कि कल वो किसी की हत्या कर देता है, तो उसके हत्या करने के बाद आपके उसके प्रति संवेदना क्या होगी? आपको तरस आएगा। और वो तरस गांधी का राशिद के प्रति था कि एक व्यक्ति आज कितने लोगों की कुत्सित मानसिकता का शिकार होकर इस कृत्य को कर बैठा। और हत्याओं को प्रचारित करने वाले लोग कहीं भी इस दायरे में नहीं आते, कभी वो आलोचना के शिकार नहीं होते। शिकार कौन होते हैं? हम और आप। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गांधी का मर्म क्या था, गांधी का विचार क्या था। और गांधी को समझने के लिए हमें जो भी श्रद्धा या घृणा की जो धूल है उसे हटा के हमें समझना पड़ेगा। तभी हम वर्तमान में गांधी के हितों को समझ सकते हैं, गांधी के विचारों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चर्चित भैया, काफी ज्यादा लंबी स्पीच थी, काफी ज्यादा प्रिपरेशन करी थी आपने, एंड आई हैव टू से काफी सोचने पर मजबूर कर दिया आपने। तो अगर किसी को इनकी स्पीच से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, या आप इनको कुछ काउंटर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट अल्ताफ सर, अगर आप चाहें तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन करके स्टेज ले सकते हैं। थैंक यू पुष्पक। मैं एक्चुअली जो चर्चित जिस चीज़ पे और जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं उसी में थोड़ा सा गांधी का रिलेवेंस को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडिबल हो ना? यस सर, जी सर बिल्कुल। ग्रेट। मैं चर्चित का एक सवाल था जो पहले भी पूछा गया था और इसी कॉन्टेक्स्ट में था वो, और मैं भी उसी चीज़ पे देखने की कोशिश कर रहा था कि पर्टिकुलरली जो करंट हालात में जिस तरह का हमारा समाज एक वायलेंस और इंटॉलरेंस, आपस में ट्रस्ट नहीं है, उस एक हालात में जी रहा है, और एक कम्युनिटी में एक इनसिक्योरिटीज हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं गांधी जी को देखना चाह रहा था कि गांधी की जो फिलोसफी है, और खासकर आई थिंक गांधी इज द वन हु वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडियन मुस्लिम यूनिटी। और वी कैन सी फ्रॉम साउथ अफ्रीका आल्सो कि वहाँ उन्होंने मुस्लिम्स के साथ मिल के काम किया। इवन ही स्टेड इन मुस्लिम फैमिलीज। उन्होंने कहा था कि मैं 20 साल से दोस्त है मेरा हिंदू मुस्लिम फैमिली से, मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे बड़ा प्यार मिलता है। और from that, when Gandhi entered into mainstream Indian politics also, we can see the Muslim participation in non-professional movement also. So even he actually support parliament reforms too, separate electoral जहाँ मुस्लिम्स की बात है, क्योंकि उसका पीछे लॉजिक ये था कि मुस्लिम्स को जरूरत है अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वो उस वक्त जरूरी समझते थे कि हम मुस्लिम्स के लिए विशेष अधिकार हम
दे सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स की हालात जो है वाफिक था इन साउथ अफ्रीका आल्सो इवन इंडिया आल्सो। तो मुझे लगता है कभी इस विशेष हालात में जिस तरह से एक समाज में मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, वायलेंस काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, वायलेंस हो भी रहे हैं काफी स्तर पर, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक इंसिक्योरिटी की फील करती है, तो मुझे लगता है कि फिर गांधी जी का बहुत रेलिवेंट हमारे समाज के लिए अभी, खासकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और एक राष्ट्रीय एकता के लिए गांधी जी के जो आइडियाज हैं, जो विचार है, बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर गांधी जी अब जिंदा होते तो वो 3-4 चीजें बोलते कि आप एक तो रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन, रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और आई विल से कि वो कहते हैं टॉलरेंट, बी टॉलरेंट, आप टॉलरेंट रहिए टुवर्ड्स ऑल द पीपल, और एक आपसी ट्रस्ट जो नहीं है आजकल, अगर आप देखें तो lack of trust among people, whether it's Hindu or Muslim or any community, there's lack of trust among communities. और गांधी कहते हैं कि एक पीसफुल वातावरण होना चाहिए, एक पीसफुल वातावरण होना चाहिए, भयमुक्त एक एनवायरनमेंट होना चाहिए सबके लिए, और उसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और वायलेंस का आपको गिव अप करना पड़ेगा। वी सी इन अगर जैसे दिल्ली में जिस तरह से राइट्स हुए थे अभी रिसेंटली, अगर गांधी जी होते तो वो कहते कि गिव अप वायलेंस, गिव अप वायलेंस। एक साइड से अगर आप वायलेंस नहीं करेंगे तो देयर इज प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू गांधी की वी कैन स्टॉप कम्युनल राइट्स। तो आई थिंक गांधी का जो टॉलरेंस का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर रिलीजन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इन वेरी एक बिल्कुल भयमुक्त एक एनवायरनमेंट, और वायलेंस का ना होना, और एक बातचीत, डायलॉग आपस में हो, बातचीतें हो, समझौते की बातें हो। तो गांधी जी ये सारी चीजें सजेस्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली कम्युनल हार्मनी के लिए और आपसी भाईचारे के लिए गांधी का बहुत रिलेवेंट है इन पर्टिकुलर जो अभी हालात समाज में और हमारे देश में अभी बने हुए हैं। जिस तरह से चर्चित मॉब लिंचिंग्स की बात कर रहे हैं और कम्युनल राइट्स की भी बात उन्होंने की, अंकित शर्मा, बाकी सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में सारी कम्युनिटीज को जो गांधी जी के पर्टिकुलरली सांप्रदायिकता को लेके, राष्ट्रीय एकता को लेके, कम्युनल हार्मनी को लेके जो आइडियाज हैं, मुझे लगता है कि गांधी बहुत रिलेवेंट करता है इन 21st सेंचुरी, और इंडिया के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आज के राजनीतिक हालात में गांधी का और ज्यादा महत्व बन जाता है। थैंक यू। Thank you so much, sir. And I think we'd expect nothing less from Altaf, sir. So, if you guys have any questions, you're sure to shoot them now. And if we don't have any questions, which I don't think we have, can we move on to the next one? Riddhi Parmar. Is she there, Riddhi? Yeah. Hi. Am I Yeah. audible? Yes, you're audible. Yes. All right. So first of all, thanks a lot for this platform, wherein I can start to think about Gandhi and his times, because personally I've had a lot of reservations coming to Gandhi and a partition and the national struggle, because like when we talk about a public figure who's always been in spotlight like Gandhi, there are hundreds of things that you can talk about this man, but unfortunately we don't right now exist in those times, so we have certain limitations when we're dealing with like those subjects. So I always wanted to keep some points of cautions whenever I reach this subject. So first is context. Context is very important, because when we're discussing about such important times that we claim to have changed the histories of at least the Indian subcontinent and the regions, I feel we must understand, we must contextualize the times and the circumstances that he had to face in his own time, right? And then let's not forget that he was such a popular leader. He was leading the masses from the front, and being a popular leader has its own advantages as well as its limitations. Like I think the struggle for a leader is to reach everyone and reach everyone in the best way possible, so that the message that he wants to convey doesn't get distorted
in the medium of communications. And that's why the third important thing is misunderstanding, um, because it's more about what reaches the readers. Like today when we read about him, what reaches us, because we are only going to read whatever was written by some writer, some contemporary of his times. And we do need to look at the fact how adulterated were their handwritings, how biased they were, how prejudiced they were, and how were um, and we need to acknowledge the subjectivity of each writer. What view the writer had in mind when he was writing about Gandhi. Maybe he wasn't like a personal disciple of Gandhi or something. Next is I'm very happy that all the seminars that we've had, they've always tackled the contradictions regarding Gandhi very brilliantly and very cautiously. So I think that's caution is the best way to approach him. And I would love to use Gandhi and his principles to understand today's times, but I would like to use my privilege as a student to my identity as a student to work on this issue. So the most important thing here is that when we enter the classroom, when we open a book, so are we entering with an objective to only criticize and oppose what's written, what's being talked about, like Churchill just now mentioned, or are we here with a fresh, mindset, with a firm resolve to find solutions to what the contemporary issues are right now? So I think that's most of it, and I do like the fact that Gandhi has not had solutions to every problem, and he says this outrightly. He doesn't say that, come to me, I have all the solutions. No, all of us, all of the Indians who are living must find solutions to their own problems. We can't talk about just one personality all the time and just blame him all the time that he is the reason why the countries were partitioned and why we had to face so much of crisis in the country, which we are even now doing. And also his method of inquiry, his method of individual discovery of truth is something that inspires students. And the fact that he's applied this principle, this practice to so many spheres, like he's talked about how environment can be enough for your sustenance, but not to satiate your greed. And he's had a very good view about economics, about environment, about students, about politics, and about culture and lifestyle of the common people. So yeah, that's it. Thank you. Thank you so much, Siddhi, and we surely appreciate it. And do we have any questions for her? I guess we don't have. So next up, I'd like to call Sumit sir. Sumit sir, if you may. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, okay. Basically, many scholars do argue that the best way to keep Gandhi relevant is to criticize him more and more. Okay, many scholars do believe it. I want to direct this discussion towards something new. I want to just, I'm just trying to think. This is a kind of question that I want to raise between all of you. That what were the sources from which Gandhi framed his philosophy or thoughts? Okay, on which sources did he depend upon? Whether they were traditional sources, we know Gandhi was influenced by Tolstoy. We know Gandhi was influenced by Bhagavad Gita by Jain traditions. Okay, but what is the role of rational thinking in the development of Gandhian thought or Gandhian philosophy? Okay, because we know that Gandhi's thoughts and philosophy are not static throughout his life. It changed, okay, with time. And but this is very important concern. What was the role of rationality or rational thinking in formation of what we say Gandhian philosophy or Gandhian thoughts in Gandhi's life? Because what happens is after the death of Gandhi, also many followers of Gandhi, whom
scholars like Yogendra Yadav term as Mathadis Gandhi. Okay, they from these traditional sources from which Gandhi framed his ideology about religion and other things. They build certain kind of stereotypes, okay, in the society, and you can see because of those stereotypes also, it a kind of negative influence of Gandhi's thought in after independence also we can feel or we can see in our subcontinent. So basically, we have to look at how what were the main sources to which Gandhi formulated his ideas. If we see Gandhi used religion, okay, religious sources, and we can see that by using religion, he was having a ready-made followers. Okay, there were many. It was a very easy way to have so many followers because people were religious. Think in same terms about Bhagat Singh, who wrote this famous writing "Why I'm Atheist." Okay, he very much used this kind of rational thinking in framing his ideology, and it was very different from Gandhi. Okay, so I just want to. This is just a kind of question, and this is open to all of you. All of you can think about it. Okay, what was the role of rationality? What was the role of logic in development of Gandhian philosophy? Whether he was too much dependent upon traditions, whether he was too much dependent upon various kinds of uh, uh, such kinds of authors, or whether he was very much rational in his outlook. Okay, or whether he was developing his philosophy and other things from kind of rational thinking. Okay, like many others, like Ambedkar and Bhagat Singh were doing at the same time. Okay, so that was my concern. Thank you, sir. Thank you for raising that question. And I think we all have to think about what sir just said. The sources that we have to refer to, or the sources that people refer to when they think about Gandhi or make a perception about him. And I think we have a question about you. No, we don't have. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. And before we move on to the next speaker, I'd like to ask if Mr. Anshuman Konwar is there. Are you there, Mr. Anshuman Konwar? Hello, yes, I'm here. Oh, well, hello, Mr. Anshuman Konwar. And I heard you're not from Kirungal College, and so I'd like to ask you about how was the experience attending the lecture series? Oh, Did you okay. enjoy it? Yes, definitely. First of all, a big round of an applause to all the team of Kirodimal College, all the teaching staff behind it, the students. They have done an excellent job, and I have been here for the past 4 sessions, and those have been really, really insightful. Like, I'm a student of political science, but before that, I was in the science stream, and it's always very insightful to know about the leaders who have such a profound impact on our society. And Mahatma Gandhi, he's someone that we cannot ignore. So before I came to the session, I did not have a lot of idea on Mahatma Gandhi. Now, there are many things. Some say that we should blame Gandhi for the partition, while some say that it's the Hindu Mahasabha that brought up the idea of 2 nations. So there are many different approaches that we can have on Gandhi. So when I first attended the lecture by Professor Kolge, Upadhyay sir, it was by Dr. Faisal Devji, by Dr. Douglas Allen. So all of them had many interesting points, and it was a really different approach that they gave. Let's talk about nonviolence, ahimsa, or let's say whatever. So in the past 4 sessions, like, I did not have much of an idea. Like, I mean, I had idea like who Gandhi was, but to have a detailed idea on someone, I think that Kirodimal College gave the best platform for anyone to explore who Gandhi was during the past 4 sessions. And I would say that you guys have done an excellent job, and I would be looking forward to see you all again in the future. Thank you so much for having me. Thank you so much, Anshuma, for joining us, and thank you so much for your kind words. We really do appreciate it, and we are really excited, and we're really thankful that you learned a lot. And I think it's because of things like this that we really, and the teachers really organize these kind of lectures so that we are able to learn and able to grab these opportunities. And not many of us do really grab these opportunities, and if they come our way, we just take them lightly or just ignore them. But seeing you out there and you're actually enjoying this lecture series and you learned a lot from them, I think
इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. I think that's what we aimed and that's what we want. Thank you so much for joining us, Akshu. And so, without wasting any more time, let's just move on to our next speaker, Mr. Vaibhav. Vaibhav, Hi, are you hello. there? Hello, Vaibhav. Yes. The stage is yours. पिछले दिनों जो लेक्चर्स हुआ उसके बाद हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो एक बात आई थी कि शायद गांधी को इतना क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि उनको बचपन से ही बहुत हाईली देखा गया है. तो जब छोटे स्टैंडर्ड्स पर भी गांधी खड़े नहीं उतरते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं कि हम लोग तो इतना हाईली सोच रहे थे पर ये तो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं और गांधी तो इन पे खड़े नहीं उतर रहे. तो लेक्चर्स जो हुआ उनमें कंक्लूड हम ये किए कि शॉर्टकमिंग्स हो सकता है पर्सनालिटी में और उस पर्सनालिटी को उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखना चाहिए. ये इस बात पे स्ट्रेस तो रहा ही. और मेरे हिसाब से गांधी का क्रिटिसिज्म इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि एक चीज जिनसे जैसे कास्ट सिस्टम से हम सबको आई होप अनकंडीशनल प्रॉब्लम्स तो होगा ही. तो जब एंटी कास्ट आइकन्स जो गांधी के साथ या गांधी के पहले आए उनके विचार बहुत ही स्पष्ट थे इस पर कि एनिहिलेशन चाहिए. और गांधी जब अपना विचार रखते हैं तो वो पूरी तरह से एनिहिलेशन की बात नहीं करते हैं. तो इस वजह से जो सरल और जस्ट आइडियाज जो एंटी कास्ट वॉरियर्स दे रहे थे वो लगता है कि अरे जब इतना आसानी से ये हो सकता है, जब एक फुल फ्लेज्ड एनिहिलेशन हो सकता है तो फिर इसमें ऐसे शब्दों के साथ क्यों खेलना कि इसको ऐसे रहने दो या फिर अंदर से रिफॉर्म करो. ऐसा लगता है कि ये तो हो नहीं सकता. अंदर से रिफॉर्म करने की बात तो बहुत लोग पहले भी करके गए और नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए. और जो लेजेंडरी आइकन्स रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं राइट्स दिलाने में सक्सेसफुल हुए. पर जो जैसे रिसेंट इवेंट्स को भी देखें तो अगर हम लोग ये सोचे कि आजकल ये बहुत बढ़ गया है, आजकल का तो है नहीं, ये तो कभी गया ही नहीं था. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो कभी गया ही नहीं, वो तो हमेशा से रहा ही है. अगर आज दिख रहा है ज्यादा इसका मतलब हो सकता है इसलिए कि आज लोग देखना चाह रहे हैं. पहले नहीं देखना चाह रहे थे शायद इसीलिए दिख नहीं रहा था, कहीं गया तो था नहीं. तो एनिहिलेशन ना ही एनिहिलेशन हो पाया ढंग से, ना ही अंदर से रिफॉर्म हो पाया ढंग से और इसी वजह से हो सकता है. और आइकन्स से ज्यादा जब गांधी की बात हो तो हो सकता है इसी वजह से लोगों को लगता हो कि ये जस्ट नहीं है, ये फेयर नहीं है. क्योंकि जैसे पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर जो स्टैंडर्ड सेट करके गए या फिर गांधी के भी पहले ज्योतिबा फूले जो स्टैंडर्ड सेट करके गए उन पे गांधी का व्यक्तित्व थोड़ा डाइसी लगता है. इस वजह से हो सकता है और क्रिटिसिज्म आता हो. तो मेरे पहले जो महोदय बोल रहे थे उनका कहना था कि टू कीप हिम रेलेवेंट इज टू क्रिटिसाइज हिम मोर एंड मोर. तो शायद इस डिलेमा को रहने देना चाहिए ऐसे ही. जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर हो ही और रोबोट्स तो है नहीं हम सब, तो अलग अलग व्यूज और इवॉल्विंग व्यूज तो होगा ही. और इस पिछले दिनों जो लेक्चर्स से जो कंक्लूजन मिला है उससे भी हेल्प होगा और इवॉल्व होने में, गांधी के व्यूज को अपने अंदर और इवॉल्व करने में. और होपफुली ये फाइनल व्यू नहीं हो जो भी जिसका भी है, और भी ज्यादा रीडिंग और लेक्चर्स के साथ और इवॉल्व हो होपफुली. थैंक यू. थैंक यू सो मच वैभव भैया. एंड आई थिंक काफी बड़ी बात बोल गए वैभव भैया यहाँ पे कि उस चीज को इस वक्त शायद हम ज्यादा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम उसे देखना चाहते हैं. काफी बड़ी बात बोल गए. एंड इसी के साथ आई लाइक टू गो बैक. आई एम सॉरी आई मिस द क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अभिनंदन. एंड मिस्टर अभिनंदन यहाँ पे ही इज आस्किंग कि I wanted to ask about Gandhi's view on Kakori conspiracy, which happened on 9th August 1925. As I quote, he addressed all of them involved in it as extremists and hindrance to freedom struggle. And just as Churchill said that Gandhi was absolutely against violence, but Kakori conspiracy never involved any casualties. I request the moderator to ask my questions as I can't connect my audio with the... Okay, so I think this question was to Sumit sir? Or... Yes, I think this question was... जी अगर सुमित सर है यहाँ पे. I don't think. बोलिए अगर आपके पास कुछ है तो बोल लेते. हेलो सुमित सर. Yes sir, I think this question was asked to you. अगर आपके पास इसका कोई उत्तर हो तो.
Which one? Can you repeat the question, please? सॉरी Hello? सर, आपका ऑडियो ब्रेक कर रहा है। जी सर। सर आपके पास चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है अभिनंदन दास से, आप चाहें तो मैं आपके लिए वो पढ़ सकता हूँ। Yeah, just read these points. Hello? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। Can you repeat the question for me? यस सर, आई कैन रीड द क्वेश्चन फॉर यू। सर चैट बॉक्स में है कि गांधी के व्यूज अबाउट द काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी, अभिनंदन दास ने पूछा है वो, गांधी जी के व्यूज अबाउट द काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी दैट हैपेंड ऑन 9th अगस्त 1925। एंड फिर उन्होंने गांधी जी को कोट करा है कि कैसे उन्होंने उस सभी इंसिडेंट में इन्वॉल्व लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहा था और हिंडरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल कहा था। एंड he'd like to ask about your views. Yeah, I think कुछ टेक्निकल केस आ रहा है। I just so मुझे लगता है कि गांधी जैसे इन सब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट उस तरीके का नहीं था। आई थिंक द मेन थिंग वाज दैट इंटेंट। इफ यू फोकस ऑन इंटेंट, दीज रीडर्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, इनका इंटेंशन काफी साफ था। ओके, इनका इंटेंशन में हम ये नहीं कर सकते हैं कि गांधी वाज काइंड ऑफ, एज मेनी पीपल से, ही वाज ए काइंड ऑफ ब्रिटिश एजेंट और ऑल दोस थिंग। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग। ओके, सो देयर, जैसा कि हमने मीन्स और एंड के बारे में काफी डिस्कस किया बीच में भी, आपको पता होगा। सो दैट मीन्स वाज डिफरेंट। ओके, सो भगत सिंह और जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो या कई और भी चीज में जो गांधी जी का टेक अलग था, इट्स बिकॉज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट ही थॉट, मतलब जैसे उनकी मोरल फिलोसफी थी और उनका जिस तरीके से उन्होंने अपनी थॉट्स डेवलप की थी, इस पर निर्भर करता था। मैं एक चीज गांधी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। इंडिविजुअली अगर आप गांधी को देखें, ठीक है, तो उनकी एक चीज जो कि काफी प्रेरणादायक है, इंडिविजुअली हम ये सब कर सकते हैं। गांधी जी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मुझे लगता है कभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ओके, दैट इज वेरी मच देयर। ओके, सो सक्सेस, वेदर इज फेलियर, वेदर व्हाट पीपल विल से अबाउट इट, जो गांधी के लास्ट फेज में होता है, व्हेन ही दैट इंसिडेंट, जब वो एक नेकेड वो स्लीप करने की बात करते हैं, उस समय भी उन्हें सरदार पटेल से लेकर जितने भी उनके आसपास लोग थे, उन्होंने बोला था कि इस तरह की चीजें नहीं करना। बट गांधी को अगर कोई प्रिंसिपल, कोई एक थॉट है जो वो जिसको वो मानते हैं, तो उसके बाद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। आई थिंक वो कम से कम अपने प्रिंसिपल, जो अपने सिद्धांतों से काफी अगर आप देखिए तो उसके प्रति काफी वो निष्ठावान है। एक तरह से ही इज वेरी मच, मतलब उसको वो किसी भी तरह से वायलेट नहीं करते हैं। तो वो अपने लाइन पर एक तरह से आके, अगर उन्हें कोई घटना वायलेंट, अब गांधी के लिए जो वायलेंस है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल या एक तरह उस तरह का वायलेंस नहीं, हमने डिस्कस किया। ही आल्सो डिस्कस अबाउट मेनी अदर काइंड्स ऑफ वायलेंस। ओके, तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में आके समझना चाहिए। ओके, ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि उनके जो थॉट्स थे, जैसा मेरा जो प्रश्न था वो यही था, जो कि मैं कि उनके जब वो थॉट्स डेवलप कर रहे थे, लास्ट, अगर आप लास्ट जो लेक्चर था, अगर प्रोफेसर एलन का आप उनको सुने, तो गांधी डिड नॉट वाज नॉट कंसर्न्ड विद एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी। ओके, ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड विद प्रैक्टिस। उन्होंने ये बात बताया था, उनको ज्यादा इन जो भी वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या हो रहा है इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ओके, एंड सो ये सवाल इसलिए बार बार उठा है कि फिर अगर वो रैशनल थिंकिंग कहाँ तक वो अपने जीवन में उतार पाए, उसके द्वारा क्या क्या चीजें उन्होंने ट्रेडिशन से ली और जस के तस से ले लिया। क्योंकि देयर वर पीपल, अगर वो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अगर ये सारी चीजें वो इंक्लूड करते थे अपने अंदर में, तो लोग तो रिलीजियस पहले से थे, उन्हें एक ऑडियंस मिलने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग आकर्षित हो गए। ओके, ये तो हमारी भाषा बोलता है। तो ये एक मुझे ये काफी ज्यादा एक स्ट्रैटेजी लगती है पॉलिटिक्स की, है ना। अगर आप भगत सिंह को देखिए तो बिल्कुल ही एथिज्म के बारे में बोलते हैं। देन ऑल्सो ही डेवलप्स काइंड ऑफ बिग फॉलोइंग, पर उनकी थॉट का जो लाइन है उसमें काफी ज्यादा लॉजिक है, काफी ज्यादा ओरिजिन का इस्तेमाल करते हैं, इवन अम्बेडकर टू दैट एक्सटेंट। बट गांधी काफी ज्यादा जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेस है उसी को इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स करते हैं।
So we have to see it's a matter of also research. कई सारी चीजों में वो जरूर ही रैशनैलिटी का इस्तेमाल करते होंगे, पर जो बड़े पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें एक तरीके से जो सोसाइटी में एक जो ट्रेडिशनलिस्ट की भूमिका है, एक पारंपरिक तौर पर वो जाते हैं, जो लार्जर कंसर्न है, वो रिफॉर्म तो करना चाहते हैं हिंदू सोसाइटी के अंदर में भी, पर उसमें से कई ऐसे रिफॉर्म है जिसकी आवाज पहले ही उठ गई है। हमें पता है, जिसे हम ये बंगाल रनेसा कहते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, कई ऐसी चीजों पर वो पहले ही आवाज उठा चुके हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जिसे गांधी इंकलकेट करते हैं, उसमें उसे रेडिकल एलिमेंट वर्क वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं एक सामाजिक बदलाव के लिए, या फिर वो सिंपली एक तरह से रिलीजन को अप्रोप्रिएट करते हैं कि एक मास फॉलोइंग उनकी बन जाती है उसके ऊपर। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं गांधी के इंटीग्रिटी, उनकी निष्ठा अपनी प्रिंसिपल के प्रति काफी ज्यादा थी, और ये हमें उनसे सीखना चाहिए। मुझे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, Surely, sir. Thank you so much, sir. Sorry to and- interrupt. As we all see, discussion is going so interesting, and we all are so eager to continue this discussion. But due to time constraints, we just left with 5 minutes more. So I would like to remind you all that we just have 5 minutes more for this discussion. Thank you. Thank you, Jatin, for informing us about that. And since we are really short on time, and I think it's the third message happened, so can we have Surbhi up next? Surbhi, are you there? Yeah, thank you, Sure. Kaustubh. Like मेरा जो वो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हम गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको घृणा की नज़र से नहीं देखते हैं। गांधी एक ऐसे फिगर है जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में रहेंगे, क्योंकि उनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, या और महात्मा जो हम कहते थे, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा जब महात्मा कहने का मतलब था वो ये नहीं था कि मैं गांधी को डिमीन कर रही हूँ, उनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, पर जब मैं महात्मा कह रही तो ये बोलते हैं कि हम गांधी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ परफेक्टली करे, जो कि गांधी ने नहीं किया। और ना ही हम उनसे, मैं उम्मीद करते कि ऑब्वियसली गांधी जी थे, वो अपनी स्पेस और टाइम के एक पर्सन थे जिनसे हम सब कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गांधी को आज का पॉइंट ऑफ व्यू से, तक का पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि जब गांधी को हम बोलते हैं कि महात्मा, तो हम उनको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गांधी जो वो सब कुछ परफेक्ट करेंगे, जो कि वो नहीं कर पाए। और इसकी वजह से हम उनके बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली गांधी जैसे फेमिनिस्ट थे या नहीं थे, और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए अपने उसमें। लाइक अगर गांधी नहीं होते तो जो नेशनल स्ट्रगल था वो शायद नहीं होता। मतलब गांधी ने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया, उन्होंने हर इंसान से वो जाकर जुड़े, गांव से जाके जुड़े वो। लेकिन अगर गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम आज, तो गांधी को हम डिमीन नहीं कर रहे, गांधी को क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये भी पता चलता है कि उनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। अगर हम किसी इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको ब्लाइंड होके नहीं वो करना चाहिए कि गांधी या तो बहुत परफेक्ट है या तो बहुत खराब थे। गांधी को दोनों तरीके से देखना चाहिए, और यही मेरा वो था कि जब मैं उनको महात्मा कह रही थी तो मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि गांधी को हम डिमीन कर रहे हैं, बट गांधी को अगर हम महात्मा कह रहे हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम कर चुके थे, हमने उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी। ये है मेरा व्यू। Thank you, Surbhi. Do you have any questions for Surbhi? Vinayak, this question is for. Okay, I don't get it, I think. Okay, next up, I think we have Aditi. Aditi, are you there? Yeah, I am. Okay, Aditi, please. Okay, hello everyone. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, जो अभी सुरभि ने कहा कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जो हम सबके अलग अलग व्यूज की वजह से होते हैं। तो आई लाइक टू मेंशन फ्यू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हम अपने लिए भी कर सकते हैं, एंड जो हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है वो भी इसे अप्लाई कर सकती है, जो हम गांधी की लाइफ से जैसा मैंने देखा है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि जो हमने लास्ट के 4 सेशंस में सुना है। So the first thing is that Gandhi's philosophy, or even any other's philosophy, shouldn't be taken as a philosophy, but as a science and as a strategy. Because जैसे ही हम किसी चीज को अपने माइंड में लाते हैं ना कि ये एक philosophy है, तो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि ये तो बस एक थिंकिंग है एंड वी शुड, तो हमें उसे एक स्ट्रैटेजी की तरह देखनी चाहिए।
Second thing is that as Gandhi emerged over time, right? So by taking him as an example, we should also have to develop our mind over time. We shouldn't have to be stereotyped, and we should have to implement and allow ourselves to get through all those policies over time, right? We shouldn't have to be rigid on our policies or any schemes. The third thing is that Gandhi's philosophy of that there should be less difference between our words and deeds. So like अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है हमारी इकोनॉमी में, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेपर वर्क हो रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है और जो प्रैक्टिकली हो रही होती है वो अलग चीज होती है. सो वी शुड हैव टू लेसन द गैप बिटवीन द वर्ड्स एंड द डीड्स, जो गांधी भी फॉलो करते थे और आई थिंक अभी की जो हमारी पॉलिटिक्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी फॉलो करने की जरूरत है. Fourth thing should be accept the failures, like because at present there are also a lot of situations जो भी social crimes हो रही हैं वो सब इसलिए होती है क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या फेलियर्स हो रही है और लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे होते, तो वो क्राइम्स होती हैं, काफी सारी चीजें हो रही होती है. तो आई थिंक वी शुड हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर्स, बिकॉज गांधी ने भी काफी सारे फेलियर्स को एक्सेप्ट किया था, तब वो आगे बढ़ रहे थे. The fifth thing is, mostly the patience, because Gandhi felt a lot of failures, and not even mentally, but also as economically and socially, etc. So we should have to be patient from internally and externally as well. The last point is observing the ground reality, because accepting and interpreting the issues and problems of the people who are living in the remote areas, whether of SCs, STs, tribes, and other vulnerable groups of our society, we should have to look after them too, because it will lead us to, ourselves to formulate such policies which will be affecting those peoples too. So I think apart from all these, everything has both pros and cons. So, and every people have their different opinions, even among ourselves. So we can. So I also cannot be rigid over my interpretations that I get in. So that's it. Thank you so much. Thank you, Aditi. Thank you for your words and thank you for your time. And next up, after Aditi, may I please call on Mr. Dhananjay? Are you there? Hello, everyone. Yes. I Hello. think good afternoon, everyone. मेरा Good व्यू ये है afternoon. या सो आई थिंक गांधी एक ऐसे पर्सनालिटी रहे हैं जिन्होंने लगभग ही हैज वर्कड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बी इट सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक. सभी फील्ड्स में ह्यूज सक्सेस नहीं मिला उन्हें, बट कुछ फील्ड्स जिनमें उनका काफ़ी योगदान रहा और अभी भी काफ़ी रेलेवेंट है 21st सेंचुरी में, वो है द आइडिया ऑफ पीस और नॉन वायलेंस एंड द मल्टीकल्चरलिज्म. ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1930s में जब प्रीमोडियल बॉन्डिंग ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जब हम कास्ट लाइन्स पे या रिलीजियस लाइन्स पे अपनी लॉयल्टी शेयर कर रहे हैं, उस टाइम गांधी बात कर रहे हैं कि मल्टीकल्चर्स को एक साथ एग्जिस्ट करने के लिए. तो अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अगर सोचें, जब कास्ट लाइन्स और रिलीजियस लाइन्स और रिजिड होती जा रही है मॉडर्न इंडिया में या यहाँ तक कि वर्ल्ड में, क्योंकि राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इस समय काफ़ी चरम पे है, तब ये सोचने पे हमें बहुत मजबूर होना चाहिए कि मॉडर्न जो आइडियाज़ हैं बॉन्डिंग की उस पे आए हैं और ना कि प्रीमोडियल बॉन्डिंग पे बने रहें. तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये कितना एडवांस व्यूज था गांधी का, जिन्हें हमें सोचना चाहिए और उस रेलेवेंस को बरकरार रखना चाहिए अभी के टाइम में. थैंक यू. Thank you so much, Dhananjay. Thank you so much. Next up, I'd like to read out Vinayak's question. Vinayak ने काफी thought provoking और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था हमसे चैट में, and I think आप सभी ने पढ़ा होगा. And I'd like to ask if anyone has to say anything about that question, या anyone would like to respond to that question. कोई होगा? Anyone? The question asked from the... Oh, sure, Jishnu, please go on.
Mhm. Okay, so hi, hello Vinayak. So his question, I'd like to just brief it out, was regarding Kasturba Gandhi, and if her personal presence in Gandhi's life was very much important while looking at everything, but then Gandhi's leadership has somehow overshadowed her contribution to the national movement of India, and I know many of us agree on this fact. And then in the last days, we have been talking about things like this. So I guess what as student I'd like to I'd like to say is we must go and have research and more readings on her, and just find out sources and have a good paper presented by ourselves. So this is for as a student of history for me, and I am sure for everyone, and I guess also for you, is a good field for research and present in front of the society how important Kasturba Gandhi was to everyone, for every one of us in regards to the Indian national movement. Yeah, thank you. Thank you so much, Jishnu. And I think that's it, guys. We should wrap it up. But there's one last thing that we still have left to do. We've actually, people are requesting Shahana ma'am to speak. Shahana ma'am, if you're there, can we please have you? We'd love to hear from you, ma'am. I think Shahana ma'am's not here currently. Shahana ma'am, I'm can you here. hear I'm me? here. Good I'm afternoon, here. ma'am. 1 second. Yes, I've been ma'am. Surely. actually talking to students on and off, and while you've been talking about Gandhi, I've been observing what you think about Gandhi. तो मैं बोलने वाली थी कि अभी कौस्तुभ आप बताओ what did you think, and Jatin आप बताओ. We are very conveniently quiet. I think this is an ongoing conversation. मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, कई स्टूडेंट्स ने कहा ही है. एंड कि वही जो आई थिंक चर्चित ने जो कहा कि श्रद्धा के एटीट्यूड से किसी को ना देखने की जरूरत है, लेकिन एज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एज अ लीडर, as a person. So I think we've had a fascinating series of talks, and I'm very grateful that Amit and others went on to organize this, and they managed to put together such a fascinating panel. All I would say is just see Gandhi as a historical character, as a figure who is and understand, read about Gandhi. You don't have to make him a god, but similarly, don't make other gods also. While criticizing him, I mean, you're a history student. You're a history student, so you don't have to, look upon any character as a god. Understand them as historical figures, and see the relevance of what they were saying, what they were doing. And I feel like with all the leaders at that time, one of the things I was telling students is, remember that they all went to jail for 10 to 12 years. They all, what nationalism meant to them would be very, very different than what it means to people in this context. है ना, आज के संदर्भ में राष्ट्रवाद और उस समय का राष्ट्रवाद, एक जो दिल में राष्ट्रवाद का होना, और अब राष्ट्रवाद एक भौगोलिक एक्सप्रेशन और स्क्वायर इंचेस ऑफ लैंड में जब आके टिका है. So what did it mean? And I'm saying that Gandhian movement is able to draw in a huge number of people who were really quiet, and people who were otherwise not able to speak or not able to participate. They're drawn in. Just sorry, 1 second. So that's the point. I would like you to assess him and understand him historically, and I'm very glad you had an opportunity to at least engage with Gandhi in a sustained way. काफी दिनों से और जितना भी समझ में आया है, and I think ये एक साल भर का conversation का material हमें मिल गया है, इस पर बात करेंगे. So yeah, that's all. Thank you.
Thank you all Thank for you so making much, it ma'am. happen. And अभी भी कौस्तुभ और जतिन तो चुप हैं, जो coordinators हमारे. I would love to hear them sometime privately ही सही. But yeah, Surely, ma'am. thank you. Yes, Thank you so much, ma'am. And before we take up any more speakers, we have something prepared for all of you. And to present this, I'd like to hand over the mic to Jatin. Jatin, yeah, if you may. As I have seen, all of us were very interested to take up this discussion more, but due to time constraint, we have to stop. So first, I would now like to invite Altaf sir to conclude today's discussion. Thank you, Jatin. Before I wind up it, I would like to intervene in the Vinayak's question, the role of Kasturba Gandhi in public and life of Mahatma Gandhi. And in my, जितनी मुझे knowledge है regarding Kasturba Gandhi, actually Gandhi categorically says that Kasturba Gandhi has a lot of impact in his life. Particularly, he was very influenced by his idea of protest and satyagraha. क्योंकि एक incident है, sometimes some friends came to Gandhi house और गांधी जी ने कस्तूरबा को बोला कि आप गांधी जी ने कहा कि आप टॉयलेट साफ कर दीजिए. She denied और उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया. फिर फाइनली गांधी को रियलाइज हुआ. तो I strongly believe कि बहुत इम्पैक्ट था कस्तूरबा गांधी का. कस्तूरबा गांधी एक्टिवली भी काफी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी. She played important role in चंपारण and बारडोली सत्याग्रह. वो कई बार जेल भी गई. और when actually she died, गांधी ने कहा था कि वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में रहा, खासकर नॉन वायलेंस और प्रोटेस्ट और सत्याग्रह के मामले में उनका बहुत इम्पोर्टेंट था. She actively advised गांधी on many issues. तो डेफिनेटली कस्तूरबा गांधी के सिग्निफिकेंस को हम नहीं कर सकते और उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा. Her mother, Gandhi's mother also played an important role in shaping his ideas and ideologies. I think this is very interesting webinar. 21st century में अलग-अलग well-known historians और अलग-अलग जो scholars हैं, उन्होंने बड़ी interesting चीजें दी और हमने एक विंडो गांधी को अंडरस्टैंड करने की हमारे लिए मतलब ओपन की, चाहे उनका नॉन वायलेंस का हो, चाहे स्पीचलेस एक प्रोटेस्ट का मामला हो और गांधी का 21st सेंचुरी में रिलेवेंस का सवाल हो. तो और आई थिंक जहाँ तक वुमेन्स का क्वेश्चन मुझे लगता है कई बार लोगों ने इसमें डील नहीं हो, खासकर वुमेन्स और गांधी को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो गांधी जी डेफिनेटली वुमेन्स और मेन को इक्वल तो जनरली मानते थे, बट बायोलॉजिकल डिफरेंस मानते थे. एजुकेशन सिस्टम में भी वो चाहते थे कि एक सर्टेन प्राइमरी एजुकेशन के बाद बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंट टाइप की एजुकेशन दी जानी चाहिए थी. और मैरिज को लेके भी उनके बहुत कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट है. आई थिंक वुमेन्स को लेके डेफिनेटली गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वीना मजूमदार सेज की बहुत रिवोल्यूशनरी था गांधी का आइडिया वुमेन को लेके जो उन्होंने आइडियाज पर्टिकुलरली शेप ड्यूरिंग 1920s and 30s. But simultaneously there are a lot of issues with Gandhi's idea on women की वो अलग-अलग एजुकेशन और दोनों को अलग-अलग भी डिवाइड करके देखते हैं कि वुमेन्स का काम क्या है और मेल का काम क्या है और ब्रेड अर्नर कौन है और घर को संभालना किसको है. इवन इन द पॉलिटिक्स आल्सो इन फ्रीडम स्ट्रगल जिस तरह के उन्होंने दोनों तरह की चीजों को कंबाइन करने की कोशिश की, बहुत डोमेस्टिक एंड पब्लिक, उस पर भी लोगों ने फेमिनिस्टों ने बहुत सवाल उठाए. तो मैं अभी वुमेन इन हिस्ट्री का पेपर पढ़ाता हूँ तो समटाइम आई फील कि गांधी वाज वेरी कंजर्वेटिव on the issue of women. So overall, I think this is a very interesting webinar. बहुत सी चीजें सीखने को हमें भी मिली और सब लोगों को सीखने को मिली और I would like to thank everyone participant जिन्होंने किया, सारे हमारे senior faculty members, Amit Suman sir, principal ma'am, IQAC for organizing such a wonderful webinar on Gandhi's birth and mission. Thank you everyone. Thank you, sir. And we all agree that the seminar was really wonderful. And now I would like to invite Sumit sir to present crux or conclusion of
our series of international webinar on Mahatma Gandhi. Hello. Sir, Yeah. yes. Sumit, Sumit, Yes, Sumit, ma'am. good afternoon. This is Dr. Anshu. Yes. Before you conclude, I am just motivated to say a few words after listening to the views of all the students, and they have been such diverse views, and they have developed a kind of understanding from listening to these 4 lectures. I would just like to say that we at IQAC, the intent was only to introduce the students to these kind of arenas of discussion forums that are available to us. And definitely, the contribution of history department has been tremendous in making this a wonderful success. And I'd like this participation of the students to continue the way it is. And it's really been, thought provoking from their end. And so I'd just like to congratulate everybody for their wonderful participation and today's program. Uh, Sorry for, just interrupting Sumit's last conclusions, but I guess he can conclude the talks now. Thank you, Sumit. Thank you, Jatin, and thank you, everybody. Thank you, Jishnu. All of you have been just so wonderful, and I think IQAC is feeling very proud to have associated and would love to, collaborate more and have some more programs with the history department. Thank you so much. Thank you, Anshu ma'am. It's all your effort to provide us such a platform. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Sumit, sir. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Okay, so we have come to the end of this 5-day webinar, and we all are left with many ideas to dwell upon in the days to come. Okay, so I would like to thank all of you who have participated. Such an active principal, ma'am, Dr. Anshu of IQAC, my senior colleague Dr. Amish Suman for organizing such a seminar, our TIC Dr. Ajit Kumar, and Sahana ma'am, Barna ma'am, all other colleagues of history department, and especially the biggest thank to you all students. Okay, because without your contribution, without your active participation, this seminar would be nothing. And I think not only participation, but the ideas which you have generated or what you have gained from this webinar is really interesting, and that you have shown today. Okay, so that's a very interesting thing. So we, if I just conclude, if we just revisit some of the ideas which came out through this webinar from the first lecture to last lecture, I'd like to just present before you some of those ideas from the first lecture. Okay, so we do. Okay. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay. Yes. Okay, so one of the first idea is we came to how to understand Mahatma Gandhi properly. Okay, so we came to this idea that Mahatma Gandhi was both a politician and also a Mahatma. Okay, and he made distinction between his high moral life from his political philosophy and social life. Okay, and then Gandhi's language was also very problematic, and it is easy to quote Gandhi against himself. Okay, this is what Professor Kolge also stressed upon. Okay, and one of the important things that we learned from our next lecture was that for Gandhi, peace was not a destination. Okay, it was a way of life. Okay, so peace was the necessary condition to live a life, and that's a very important idea, because what we lack in today is really peace. Okay, substantial peace. Then another important about Gandhi was Gandhi's speechless politics, or Gandhi idea was silence. Through a meaningful silence, Gandhi could touch the forces of speech, thoughts,
and awareness that we often miss through speech. Okay, so for Gandhi used his silence to listen to his inner conscience, to listen to his inner voice. Okay, for Gandhi, silence was better than speech in many ways, because through speech, truth can be modified, truth can be manipulated, it can be exaggerated. So many times Gandhi also advocated silence over peace. And also, in the last lecture, we came to Gandhi philosophy in a better way, about his philosophy, how it is relevant today. Okay, in many ways, the philosophy of peace, or the philosophy of compassion, the use of non-violence as a strategy to fight any force in the world, that Gandhi has shown to us. Okay, so I would like to just wind up, and it's over to you, Jatin. Thank you, sir. Thank you for conclusion of our series of international webinar. Now I would like to invite Dushyant sir to bid adieu to all and for giving thank you note. Dushyant sir. I think Dushyant sir is not here. Video. So I would like to invite Shambhavi to present a tribute to Mahatma Gandhi from students. Shambhavi. Hello. Hello. पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करी के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल धरती पे करी तूने अजब ढब की लड़ाई दागी न कहीं तो अपना बंदूक चलाई दुश्मन के किले पर भी नहीं तूने चढ़ाई बाहरे फकीर खूब करामत दिखाई चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल A big round of applause for all three, and you guys were wonderful.
And thank you to all the participants, Shambhavi, Rohini, and Surbhi. You guys were wonderful. Now I would like to invite Dushyant sir to bid adieu to all and give us a thank you note. Hello, Yes, I'm sir. audible. हाँ, थैंक यू जतिन। हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के IQAC के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय 5 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 21वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के दर्शन, राजनीतिक विचार और सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो उनके व्यूज हैं, उनके जो फिलॉसफी है, उनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रिंसिपल मैम फॉर योर keen interest and effort in making this webinar happen and your words of encouragement. And after that जो हमारे स्पीकर्स रहे, स्पीकर्स में सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्टर निशिकांत कोलगे सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और किरोड़ीमल कॉलेज हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ गांधी पर एक अच्छा व्याख्यान दिया, जिससे हमें महात्मा गांधी के जो जीवन या उनकी जो फिलॉसफी थी उसके बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद जो सेकेंड स्पीकर रहे डॉक्टर प्रियंकर उपाध्याय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गांधी कंटेम्प्रेरी पीस एंड कंटिन्यूम पर एक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लेक्चर रहा उनका, एंड उससे उनके व्यूज से एक नए दृष्टिकोण के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया गया। एंड थर्ड जो हमारे स्पीकर है प्रोफेसर फैसल देव जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK को मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें देव जी ने गांधी स्पेशलिस्ट पॉलिटिक्स फैसिनेटिंग लेक्चर्स एंड एक्सप्लेन द पावर ऑफ साइलेंस। एंड जो फोर्थ डे के हमारे जो स्पीकर रहे प्रोफेसर डगलस एलन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैन USA, is Mahatma Gandhi's challenging philosophy of violence and non-violence irrelevant। ये काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया एंड इस पे इनके टॉपिक पे पूछे गए जो क्वेश्चंस थे उनको काफ़ी बारीकी से उन्होंने बताया। एंड सर को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हमारे इस आयोजन की, इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन के मुख्य जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार सुमन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन 5 दिनों में हमें विश्व के जाने माने इतिहासकारों से बात करने, उनसे इंटरेक्ट होने का अवसर प्रदान किया। और इसमें मेरा मानना है कि स्वयं में विद्वता प्राप्त कर लेना या जीवन की एक उपलब्धि है, लेकिन अनेक विद्वानों को एक मंच पर सम्मिलित कर देना या कर देने का गुण होना एक परम उपलब्धि होनी चाहिए। अतः हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहें जिससे हम लाभान्वित होते रहें। और इसके बाद हमारे TIC अजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सहाना मैम एंड अल्ताफ सर, सुनील सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय इस आयोजन में दिया। एंड आशु मैम कन्वीनर ऑफ IQAC को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग दिया। एंड सभी इस आयोजन के लिए सभी पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स। Thank you, sir. Now I would like to invite Ajit sir for concluding remark. Ajit sir, do you have it? हेलो। Yes, sir. Not finding words for you people to have organized such a beautiful, wonderful seminar. Yaar. I don't have words, but I just want to say that I have been actively listening to all the lectures, not only the lectures, but the kind of preparations the student of history department have done.
And the way it was, I mean, it was a challenging task because this is for the first time that we had the virtual seminar or on such a short notice, and the way you people actively participated and made it, a success, made it happen amidst the pandemic is something that needs applause. Huge round of applause for that. मैं लगातार सुनता रहा डे 1 से लेके आज तक. अगर एक आध सेकंड के लिए कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम रही हो तो अदरवाइज मतलब मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं इस प्रशंसा के लिए. थैंक यू एवरीवन. And of course, the gem of the person from the faculty side happens to be Amit Kumar Suman, because had he not taken interest, we would not have had such kind of a seminar. So thank you very much, Amit, क्योंकि हम सबको एक साथ लाना, एक मंच पर करना, और इस समय में देश और विदेश से स्पीकर्स को ले आकर करना और उसको हिस्ट्री डिपार्टमेंट और IQAC के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मंच पर ये कर देना और वो 2 अक्टूबर को शुरू कर देना, वो आसान काम नहीं था और अमित ने ऐसा किया. थैंक यू वेरी मच अमित. थैंक यू अंशु मैम. थैंक यू प्रिंसिपल मैम. एंड ऑफ कोर्स जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कमर कस के, कहीं पर भी मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखा इसमें. सो मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं. मैं इतना ही कहूंगा जिस तरह से ये सेमिनार आप लोगों ने आयोजन किया. और जहां तक गांधी की बात है तो गांधी से तो हम मतलब जैसा कि सेमिनार से निकल कर आया कि वो एक इवॉल्विंग पर्सनालिटी है लाइक अदर ह्यूमन बीइंग्स. लाइक जैसे सहाना ने कहा कि गॉड जो होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन. मानव और ईश्वर में एक अंतर है. मानव ईश्वर होने की शर्त है कि वो उदात्त होता है, उसमें कोई गलतियां नहीं होती, उसको सब पता होता है. और मानव होने की शर्त है कि वो गलतियां करता है. तो इसलिए ये कहें कि वो गलतियां नहीं हैं या फिर इनके वीकनेसेस नहीं हैं या क्या है, वो कहना ही बहुत गलत होगा. गांधी को देखने के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, उन पर जो क्रिटिक हो सकता है उसका पहलू हमने इस सेमिनार में देखा और हम आगे भी देखते रहेंगे. ये एक शुरुआत हुई है. और जैसा कि टाइम टू टाइम मैंने बीच बीच में कहा कि जो ग्रेट ट्रायल हुआ था तो गांधी की जो चुप्पी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद, और वो साइलेंस जो था कहीं ना कहीं एक किस्म का सोलेस था जो उनको मिला. लेकिन वही साइलेंस ब्रिटिश काउंटर पार्ट की ओर नहीं रहता है जब वो चैलेंज करते हैं. जब उनको ट्रायल में कहा जाता है कि आपको क्या कहना है जरा बताइए, तो कहते हैं कि इफ यू थिंक दैट यू आर प्रिजाइडिंग ओवर द जस्ट सिस्टम देन गिव मी द हाईएस्ट पनिशमेंट अंडर द स्कीम ऑफ लॉ. That is possible. But if you think that you are presiding over the unjust system, then you don't have any option rather than resigning from your post. तो गांधी को जहां वोकल रहना है वहां वोकल रह सकते हैं, रहते हैं, और जहां साइलेंस होकर सीख देना होता है वो देख रहे हैं. और ये सारी जानकारी हम इसी सेमिनार के थ्रू समझ पाए. So thank you very much everyone, and I'm really proud of my department. I'm lucky that I am the part of this department. Thank you very much everyone. Thank you, sir. It's all guidance of you all teachers that made us do this. Thank you. Thanks to you and thanks to all teachers. Now I would like to invite Gaurav to give thanks everyone. Thank you everyone. Gaurav? Yeah. Good afternoon all. We would like to thank History Department of Kirori College for inaugurating the international webinar on relevance on Mahatma Gandhi in 21st century. And we would also like to thank IQAC, Internal Quality Assurance Cell, for collaborating with the History Department. We would also like to extend our thanks to the teacher of History Department and Dr. Amit Suman for collaborating the whole event. At last, we are extremely grateful to each and every one of you for attending this event, and a special thanks to non-DO students for participating in this international webinar. It surely wouldn't have possible without you. Thank you. Thank you, Gaurav.
And now on the behalf of organizing team also, I would like to thank every participant who diligently participated in it. And also अगर कोई गलती हुई है तो माफ करना, but we have tried our best to do perfect. But yeah, no one is perfect. So thank you everyone. Thank you for participating. Thank you all. Thank you teachers. Thank you students. Thank you.